तो दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। बेस्ट ऑफ क्रिकेट बाली ट्रॉफी 2016 में एरन मैन अल्ताफ बाली, अजमल नासिककर, शाहिद पापा और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से आज की शाम का आखिरी मुकाबला वकी स्पोर्ट मापोली, इरफान भूरे फैम टीम और मित कुमार दिनेश चौधरी फैम टीम। एजाज पटेल और दानिश भूरे ने भी ऑल द बेस्ट कहा है वकी स्पोर्ट मापोली को। शादाब कुतकर, फरहान पटेल, सिकंदर पटेल, साथ ही साथ दानिश पटेल, नौशाद पटेल और जकी नाचन हमारे कमेंटेटर। ये देखिए मैजिक बॉक्स दिनेश चौधरी का स्पॉन्सर है, उनकी टीम ही खेल रही है, लेट मोहन सेठ चौधरी। आखिरी मुकाबला खेला था इसी ग्राउंड पे कैफी आजमी का। तो दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर महेश और नॉन स्ट्राइक पर है राहुल। गेंदबाजी के लिए सरफराज भूरे। बिल्कुल, सरफराज भूरे ब्रॉट इनटू द अटैक, इज द की बॉलर एंड फेसिंग हिम महेश चौहान। This time Gozes back foot, beautiful punch in the gap. Fielder after it, ball is racing to the cover boundary for 4. Lovely looking drive, a confident looking cover drive. Gozes back foot and punch it very hard in the gap, and ball is racing all the way to the cover boundary for 4. Mahesh Chauhan open his account with boundary, and Mit Kumar 4 for no wicket. What a batting against these two Wiki Sport Kukse in Kaifi Azmi. This time appeal for LBW, ask the question, but with the stroke batsman through for 1. Umpire Koti unmoved there. 5 for no wicket, leg by signal from umpire. बहुत बढ़िया गेंद थी बाबे सर, वहां पर विकेटों में आ रही थी। decision. Ball is clearly missing the leg stump. Nice decision from umpire Koti. Here goes Sarfaraz Bhure facing him batsman dangerous Rahul, who played a superb knock in Kaifi Azmi against Maratha Punjab, against Yasir, and then against Ekta Mizail Prashant. Here goes Bhure. This time goes his back foot, try to square cut. Well, stop at short third man, and meanwhile batsman gets 1. Here goes Sarfaraz Bhure facing him batsman Mahesh Chauhan. Goes to Mahesh, try to hook that ball. Yes, Mahesh on his way. And first wicket has gone now. Mit Kumar 6 for the loss of 1 wicket. First wicket has gone now. इस वक्त रात के 10 बजे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, अदालत उज़्मा के हुक्म की तामील करते हुए अब हम डीजे भी बंद कर रहे हैं और हमारी ग्राउंड कमेंट्री भी अब हमारी आवाज़ आप टेलीविज़न सेट पे सुन सकेंगे। ट्राई टू हुक दैट बॉल, नॉट बैक ऑफ द डिलीवरी, टॉप एज एंड वेल टेकन बाय विकेट कीपर. सो फर्स्ट विकेट इज गॉन फॉर चीपली. मैन आउट महेश चौहान फॉर जस्ट 4 and his score is 6 for the loss of 1 wicket. बिल्कुल बाबे सर, लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी, वहां पर एक खराब गेंद भी, अच्छा विकेट यहां पर मिलता हुआ सरफराज को. महापोली का शो जो 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आप देखेंगे, जिसमें 30 ग्रामीण की टीमें, 16 भिवंडी सिटी की टीमें और 8 मुंबई ओपन की टीमें. अदनान बाबे, फरहान कोतकर का बिग शो शैलेश गायकवाड़ के साथ. Yes, tomorrow some interesting matches. First match, Jai Bajrang Kariwali meet VM Tiger. This Jai Bajrang Bhunda Vadoli meet VM Tiger. Second match, Veer Bajrang Kariwali meet Al Noor Sport.
Here goes Sarfaraz Bhure. Ball this time, batsman looking for a fine glance. He bows in Dusra Mohalla. White signal from umpire. 1 to score now. His score moves up to 7 for the loss of 1 wicket. Sarfaraz not control on his line, and batsman looking for an elegant glance. Altaf Sheikh, terrific reverse player, facing Sarfaraz Bhure. This time goes his back foot punch very hard, wide of mid off, and with the stroke batsman through for 1. 1 to score now. His score moves up to 8 for the loss of 1 wicket. The third match between Jai Vetan versus Al Fateh Padga. The fourth match between Sarkar Sport, Azhar Mazhar Sheikh Fam team meet Patel Sport. Here goes Bhure. This time fine delivery. Batsman looking for a rooms miss in the air end of the surface. That marks end of the first over. Shahid Khan. His score is 8 for the loss of 1 wicket. Look at that fine delivery. Little bit in cutter. Yes, fine delivery. That's the off cutter from Bhure. End of the first over. 8 for the loss of 1 wicket. बिल्कुल एक ओवर की समाप्ति इस वक्त अच्छी गेंदबाजी हम कहेंगे बाबे सर। सरफराज की एक चौका ज़रूर लगाया था उन्हें, लेकिन महेश आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। बल्ताफ और राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं। आने वाले बैट्समैन में अगर हम देखें तो बैटिंग लाइनअप काफ़ी है। अमित कुमार के पास गणेश एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, और ख़ासकर अगर हम देखें काफ़ी लंबी बैटिंग लाइनअप आज केदार पाटिल भी टीम में नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए शैलेश गायकवाड, उस्मान मामू, बबलू टाइगर, गणेश फ्रॉम टेमगर। कल 5वां मुकाबला रहेगा जहां पर उस्मानिया टकराएंगी विनर स्पोर्ट्स से। कल सूफी स्पोर्ट इस्लामपुरा का मुकाबला, और कल आखिर में पावर ऑफ तलोली और जॉली स्पोर्ट कामतगढ़। व्हाट अ मैच। इस मरतबा हुक कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ पहले माउंस पर, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही खराब गेंद थी, बहुत ही छोटी गेंद थी। वहां पर बाबे सर पूरी तरह बैट फुट पे थे अल्ताफ, और इस तरह की गेंद पावर प्ले में बहुत ही महंगे साबित होती है। गेंद को खेल दिया बाउंड्री के बाहर 4 रन। बिल्कुल मापोली के कई हजार दर्शक इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं। क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला था वहां पर। गेंद की लाइन को बहुत जल्दी पढ़ लिया था, हरकत में आ गए थे, और हरकत में वैसे भी बरकत है। 4 रन मिलते हुए अल्ताफ को। अल्ताफ शेख इस मरतबा रिवर्स खेलने की कोशिश। इस शॉट ने उनको फाइनल हरा दिया था। डायरेक्ट थ्रो लगा है, लेकिन पहुंच गए अपने क्रीज में। स्कोर इस वक्त 13 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। इरशाद बहुत अच्छी गेंद, पैरों पे निशान, आउट एलबीडब्ल्यू। बड़ी विकेट, राहुल आउट हुए वहां पर, और बड़ी विकेट गिरती हुई यहां पर अमित कुमार की। बिल्कुल बाबे सर बहुत बढ़िया इस वक्त गेंद थी। यस, यॉर्कर लेन की गेंद थी और मिडल स्टंप पे थे वहां पर। राहुल किस उम्मीद से दौड़े थे वहीं जानते हैं। ये फिर से देखते हैं किस तरह की परफेक्ट यॉर्कर, मिडल स्टंप पे गेंद टो से टकराई और आउट हो गए राहुल। दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर अमित कुमार। बिल्कुल बड़ी विकेट इस वक्त गिरती हुई। अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे केदार पाटिल। वकी स्पोर्ट्स महापोली की तरफ देखिए तो वकी स्पोर्ट्स महापोली की भी बाबे सर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। आज बाजिल भी खेल रहे हैं, अदनान बाबे भी हार्ड हिटिंग बैट्समैन। बिल्कुल एक बात सुन ले कि कैफी आजमी में जो टीम का खिलाड़ी जिस टीम में भी खेला है, अगर आपको इस ट्रॉफी में दूसरी टीम में खेलना है, अपने फ़ोटो जमा किए, तो
तो उस टीम के फाइनेंसर और कैप्टन का एनओसी आपको जरूरी है, अथवा हम खेलने नहीं देंगे। इस बीच ये गेंद बहुत डेलिकेट लेट कट किया है, गेंद तेज आउटफील्ड पे सरकती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। डेलिकेट शॉट खेला है वहां पर, बल्ले के मुंह को खोलते हुए बैट्समैन केदार पाटिल ने। क्या एंट्री की है केदार पाटिल ने तालुका क्रिकेट में, बहुत दिन से पिक्चर से गायब थे और आए, और ये देखिए नजाकत ज्यादा और ताकत कम। बिल्कुल बाबर सर, सिर्फ दिशा दी वहाँ पर, दिमाग का इस्तेमाल किया, ताकत का कम, और गेंद बाउंड्री के बाहर। ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी है, जिस दिशा में गेंद हो उस दिशा में स्ट्रोक अगर खेलते हैं। केदार पाटिल ने इस सीजन में आते ही चौके से शुरुआत कर दी है। स्कोर अमित कुमार का 17 रन। इरशाद केदार के लिए फिर से डेलीकेट खेला है, लेकिन इस मरतबा अच्छी फील्डिंग की, बैकवर्ड पॉइंट पे खड़े फील्डर ने 1 रन से 18 पे पहुंचा। इरशाद काफ़ी जगह दे रहे हैं। आज 18 फरवरी है और आज ही के दिन 1977 में डेब्यू किया था जुएल गार्नर और कॉलिन क्राफ्ट, आंधी गेंदबाज, ब्रिजटाउन बारबाडोस में। आज ही के दिन ग्राम निशाम ने 2014 में अपना डेब्यू शतक लगाया था। इस मरतबा बैकफुट पे गए, पंच की हवा में और आउट हो गए बैट्समैन। बहुत बढ़िया कैच वहां पर अदनान भाबे का, मानो तलाश में थे वहां पर, बहुत ही तेज स्ट्रोक जमाया था अल्ताफ ने, और अल्ताफ की बारी समा, बड़ी विकेट इस वक्त गिरती हुई, और अदनान भाबे का बहुत बढ़िया कैच। ये देखिए किस तरह से अपने आप को जगह देके उछलती हुई गेंद पे पंच किया था, जंपिंग पंच, लेकिन अदनान भाबे ने सर्कल में कवर्स में अच्छा कैच लिया। तीसरा झटका यहाँ पे लगता हुआ और आउट हो गए बहुत ही इनफॉर्म बैट्समैन अल्ताफ। बिल्कुल बाबर सर, अगर हम देखें तो विकेटें गिर रही है यहाँ पर, लेने में कामयाब हो रहे हैं वहाँ पर बॉलर। आज की रात का आखिरी मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, और कहा जा सकता है कि दोनों ही बैलेंस टीमें हैं बाबर सर, और एक कड़ा मुकाबला होने की जो अपेक्षा थी, अब देखना है कि वकी स्पोर्ट्स महापोली भी बढ़िया गेंदबाजी करती हुई। नए बैट्समैन इस वक्त सोमनाथ बल्लेबाजी को जा रहे हैं। स्कोर है अमित कुमार का 18 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। बहुत ही सुंदर वातावरण है, आइडियल क्रिकेट कंडीशन है, आउटस्टैंडिंग एटमॉस्फेयर हम देख रहे हैं परशुराम टावरे स्टेडियम में। दूधिया रोशनी पूरे ग्राउंड को अपने बाहों में समेटती हुई, हल्की ठंडी हवाएं मैदान के ऊपर बह रही है। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगले 2 ओवर में क्या होता है ये सुनते हैं हम शाहिद खान से। थैंक यू बाबर सर। 2 ओवर की समाप्ति इस वक्त, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस पावर प्ले में यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 2 ओवर, स्कोर इस वक्त 17 रन, 18 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अमित कुमार। समय के मामले में थोड़ा सहयोग करे वकी स्पोर्ट्स महापोली। देखना है, अभी भी दोनों अच्छे बैट्समैन इस वक्त क्रीज पे वापस। सर आने वाले बैट्समैन में सचिन पवार एक अच्छे बैट्समैन है, गणेश अच्छे बैट्समैन है, तो यहाँ पर विकेट लेने में कामयाब हो रहे हैं। अब ये देखते हुए परिवर्तन गेंदबाजी में, और मोर्चे पे लगाया जा रहा है गेंदबाज आसिफ को। देखना है, पहले दोनों ही गेंदबाज को अगर हम देखिए तो बाबर सर सफल रहे थे, अब तीसरा गेंदबाज जो लाया गया है क्या वो सफल होता है नहीं। आसिफ राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे केदार पाटिल के लिए। भी पहली गेंद तेज तरार गेंद थी, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक खेल दिया, गेंद जा रही है इस वक्त कवर बाउंड्री के बाहर, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ये केदार पाटिल का क्लास है, क्योंकि बैट्समैन का क्लास उसके शॉट के पीछे झलकता है। देखना चाहेंगे क्या खूबसूरत कवर ड्राइव खेला है, फ्लैशी कवर ड्राइव। ये देखिए आसिफ ने गेंद जो की थी ऑफ स्टंप के बाहर थी, जगह दी थी, और ये देखिए फ्लैशी कवर ड्राइव, प्लेसमेंट लाजवाब, गजब का स्ट्रोक खेला है वहां पर, 4 रन। और ऐसे लगता है कि केदार पाटिल घर से सेट होकर आए हैं। बाबर सर बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक इस वक्त, गेंद के ऊपर जाके बल्ले को रोल किया। ये देखते हुए अब थर्ड मैन के फील्डर को अंदर लिया गया, खबर को इस वक्त डीप किया गया। अदनान इस वक्त खबर में जा रहे हैं। आसिफ जो तेज तरार गेंदबाजी करते हैं,
इस बीच बहुत बढ़िया गेंद सीने की ऊंचाई से खेला था, खतरा हो सकता था लेकिन अपने फॉलो थ्रो में कलेक्ट नहीं कर पाए। वहां पर एक रन से स्ट्राइक को रोटेट किया केदार ने। अब स्ट्राइक है सोमनाथ के पास, लेकिन स्कोर इस वक्त बढ़ता हुआ 23 रन। बिल्कुल हम कह सकते हैं अच्छे टोटल की तरफ बढ़ रही है। शाज ठानवाल और फरहान ठानवाल ने भी ऑल द बेस्ट का है, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है क्योंकि केदार पाटिल जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। आसिफ, इस बीच बहुत ही तेज तरार गेंद, अपील देखना है लेकिन हम पर सहमत नहीं। डॉट गेंद, फुल लेन की गेंद थी, वहां पर वापस तेज तरार गेंद थी, खेलना चाहते थे सोमनाथ। डॉट गेंद, फुलर लेंथ की गेंद थी और ये देखिए बल्ला जमीन से टकराया था जिसका साउंड वहां पे महसूस किया था। आसिफ फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बीच फिर से गेंद, तेज तरार गेंद इस वक्त, लेकिन ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप से वाइड का इशारा अंपायर शकील कोटी का। स्कोर इस वक्त 1 रन से बढ़ता हुआ 24 रन। 24 लॉस ऑफ 3 विकेट मित कुमार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। आसिफ, इस बीच शॉट गेंद थी, पुल करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, हवा में जरूर 1 रन बना, वहां पर दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया केदार ने। 1 ही रन से संतोष। बिल्कुल उछाल ज्यादा था और सीने के पास पाया था बैट्समैन ने। ये देखिए किस तरह से वहां पे पुल करने की कोशिश की थी। आप दूर से जब खेलते हैं ऑफ स्टंप के बाहर से, तो फिर आपका जो फुटवर्क है वो अच्छा नहीं रहता है। आसिफ, इस बीच गेंद, लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, बढ़िया गेंद इस वक्त। बाली ट्रॉफी जहाँ भी इंसान है वहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इस वक्त tenniscricket.in के संतोष नानेकर ने लाजवाब टेलीकास्ट पहुंचा है दुनिया में। और ट्रिपल एस की नेट साइट पे भी आप देख सकते हैं, लॉग ऑन कीजिए www.triplesbwd.com। आसिफ, इस बीच फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बल्ले की जड़ से केवल दिशा दी, वहां पर शॉर्ट कवर में अदनान गेंद के पीछे 1 रन बना, दूसरे के लिए निकल पड़े, तेज थ्रो लेकिन 2 रन तेज कदमों से पूरे। बहुत अच्छा तालमेल था वहां पर दोनों ही बैट्समैन के बीच में, कमिटमेंट बहुत बढ़िया थी। वापस 3 ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर इस वक्त अगर हम देखें तो 27 रन। 9 का इस वक्त करंट रन रेट चलता हुआ और फ्लड लाइट की रोशनी में वापस सर हम कह सकते हैं कि अच्छा इस वक्त रन रेट, क्योंकि अगर हम देखें तो 50+ फ्लड लाइट की रोशनी में एक अच्छा टोटल कहा जा सकता है। क्योंकि वकी स्पोर्ट्स मापोली को अगर हम देखें तो बैटिंग लाइनअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनकी। बाजिल पटेल है, जॉन्टी है, बबलू है, सरफराज है, अदनान है, इरशाद है, अरबाज है, तो शमून है, तो कई बैट्समैन वकी स्पोर्ट्स के पास भी मौजूद है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 50+ रखना होगा। अगर गेंदबाजी की तरफ देखते हैं मित कुमार की, तो जुबैर एक बहुत अच्छे गेंदबाज है, खासकर सागर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, सागर ने तो डिलीवरी ऑफ द ईयर डाला था बी इंडियन के सामने जब उन्होंने मुनाफ को आउट किया था शॉर्ट लिफ्टिंग डिलीवरी पे। बिल्कुल, इस वक्त मौजूदा मकबा भी हमारे बीच में है, जिनका पानी काफ़ी फेमस हो चुका है। बिल्कुल, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा हमें मैसेज आ रहे हैं, खासकर बाली ट्रॉफी के लिए और कमेंट्री पैनल के लिए भी, खासकर भावेश सर के लिए इस वक्त काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि ये कई जगहों पर दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त इस टेलीकास्ट की और इस ट्रॉफी की सराहना। इस बीच ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, खेलना चाहते थे लेकिन ज़्यादा बाहर ऑफ स्टंप से, वाइड का इशारा अंपायर सुरेश दलवी का। शाज का बॉलिंग एक्शन देखिए, थोड़ा सा बुमराह से मिलता जुलता जब वो गेंद को डिलीवर करते हैं। भारत के तेज गेंदबाज और मुंबई इंडियंस से खेलते हैं बुमराह। इस वक्त एजाज पटेल की ओर से बेस्ट ऑफ लक वकी स्पोर्ट्स महापोली को इरफान मुल्ला की तरफ से। इस बीच शॉट गेंद थी, बैटफुट पे चले गए, बहुत ही तेज स्ट्रोक पॉइंट की दिशा में, शमून मौजूद है वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। शॉट तो बहुत अच्छा जमाया था लेकिन प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं था। एक अच्छे शॉट के लिए आपका फुटवर्क, आपका टाइमिंग, आपका प्लेसमेंट चाहिए। एक अच्छी गेंद के लिए गेंद की लंबाई, गेंद की दिशा और गेंद का नियंत्रण आपके पास चाहिए। शाहाद फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर वाइट और 2 विकेट से। शाज
उनका सामना करें इस वक्त केदार। इस बीच रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन देखना है वहां पर अंपायर के इशारे का इंतजार और गेंद इस वक्त वाइड बॉल। पटक रहे हैं कंधे की जोर से, बैट्समैन की रीच के बाहर थी स्ट्रोक लगाने के, इसलिए वाइड घोषित किया और लेग अंपायर इशारा कर चुके हैं वहां से कि आप एक बाउंसर गेंद कर चुके। बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर कंधे की जोर से गेंदबाजी करने की कोशिश की जा रही है शाहज द्वारा, और एक्स्ट्रा रन भावे सर नाइट में खासकर बहुत ही महंगे पड़ते हैं। फिर से इस बीच गेंद टॉप एज लगा, हवा में, देखना है फील्डर उसके नीचे, लेकिन क्या कर रहे थे वहां पर सरफराज। 2 रन इस वक्त पूरे, तीसरे के लिए जाना चाहते हैं सोमनाथ, मना किया। काफी समय था वहां पर भावे सर, लेकिन बैलेंस जो था सरफराज बुरे का कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहा था। बिल्कुल देखिए महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि केदार पाटिल थे, रिवर्स खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपर गेंद लगी थी और मिस जज किया था उन्होंने, आखिर में हाथ जरूर हराया, क्या छूटा और सपना भी टूटा। बिल्कुल भावे सर, अब जब एक बड़ा मुकाबला खेल रहे हो और बड़ी टीम के सामने खेल रहे हो और एक बड़े खिलाड़ी का कैच इस तरीके से अगर छूटता है तो वो टीम के लिए बहुत महंगा साबित होता है। लेकिन देखना है क्या जीवनदान का फायदा केदार पाटिल उठाते या नहीं। शाहज फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म और विकेट से बिल्कुल तैयार। फिर से शॉर्ट गेंद इस वक्त खेला है, देखना है वहां पर गेंद कवर बाउंड्री की ओर, नजर नहीं आई वहां पर अदनान बाबे को। सभी सोच रहे थे कि गेंद पॉइंट पे गई है, लेकिन गेंद गई कवर में। अदनान परेशान, शमून परेशान थे। खेलने की कोशिश पॉइंट पे ही की थी, क्योंकि बैट्समैन जब जहां खेलता है तो अपने नजरें भी वहां गाड़ देता है, लेकिन गेंद चली गई थी कवच में। गेंदों को पटक रहे कंधे की जोर से गेंदबाज शाज ठानवाल इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। शाज फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बीच ये गेंद फिर से लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, लेकिन गेंद कारपेट के सहारे मिड विकेट की दिशा में। 1 रन इस वक्त स्कोर में और बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 35 रन। अब एक अच्छे टोटल की ओर इस वक्त अमित कुमार बढ़ रही है बाबे सर, चौथे ओवर का खेल चल रहा है और 35 रन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक अच्छा टोटल। और बैटिंग पावर प्ले अभी बाकी है और गणेश का आना बाकी। शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट। इस भी फिर से पटकी हुई गेंद थी, इस वक्त अपील की जा रही है, लेकिन देखना है इसी के साथ आउट। सोमनाथ की बारी समाप्त। काफी नीच लगा था वहां पर बाबे सर, अपील जिस तरीके से हुई थी ऐसा लगा था कहीं ना कहीं बल्ले को छू के गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गई है और आखिरकार सोमनाथ आउट होकर पवेलियन वापस। ये देखिए किस तरह से आउट हुए, दूर से खेलना चाह रहा था, बल्ले को छूती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, बड़ी विकेट गिरती हुई। और नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को आ रहे हैं टीम के कैप्टन, शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट गणेश। गणेश की कई बारियां हैं शाहिद खान, आपको तो पता होगा कि बीसीसी पे भी वो टूट पड़े थे देर शाम सोहेल नवाब बेग में। एक गेंद अभी भी 100 ओवर में बाकी। बिल्कुल, स्कोर को अगर हम देखें बाबे सर तो 35 रन बने हैं और अभी भी एक गेंद बाकी। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। विकेटों को अगर हम देखें तो 4 विकेट गिर चुके हैं यहाँ पर अमित कुमार स्पोर्ट्स के, लेकिन देखना यहाँ पर अब गणेश फ्लड लाइट की रोशनी में किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। अहमन अंसारी को आप देख रहे हैं, बूम बूम कैप्टन आशिर अंसारी की दुख्तर अख्तर। शाहद इस बीच ये गेंद तेज तरार गेंद थी वहां पर, तो इसी के साथ ओवर समाप्त होते हुए 4 ओवर की समाप्ति इस वक्त और रन बने हैं 35। विकेटों को अगर हम देखें तो वापस अब 4 महत्वपूर्ण विकेट जरूर गंवाए। अब देखना है कि स्लॉक ओवर में 2 ओवर का खेल बचा है, दोनों ही अच्छे बैट्समैन क्रीज पर है, क्या कुछ होता है, क्या स्कोर 50 प्लस जाता है या फिर वकी स्पोर्ट्स महापोली के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आगे का हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ ठाणे बाबे सर। थैंक यू शाहिद खान। आई थिंक Sagar Bhuir, the captain of Jai Bholenath Sarolipara, watching from Magic Box. Jai Bholenath won the Friends Group Cup in Goa, beat Maratha Punjab in last over. 17 runs given by Yasir.
So back to cricket now. Batting power play taken, signal from umpire. And from here, I think Shahid Khan, another 15 runs, 15 plus runs. Faraj Nasikar is there, Chilli proprietor is going to be change in bowling now. Sarfaraz Bhure brought into the attack. Yes, the uncle of Altaf Sheikh. Very important over. Now begin for Sarfaraz Bhure, the trump card bowler of Waki Sport Mapoli, brought into the attack. Facing him batsman Kedar Patel, would drop by Sarfaraz Bhure. Here goes Sarfaraz Bhure. Facing him batsman Kedar Patel. This time goes his back foot pull. Oh ho! What a shot! Massive hit, biggie one out of the ground. Shahid Khan, unbelievable stroke played by Kedar Patil because he read very earlier and makes the position very earlier. Then short arm pull and powerful for 6. बिल्कुल बहुत ही तेज स्ट्रोक वहाँ पर बाबर सर, बहुत ही तेज गेंद थी सरफराज की थोड़ी सी, लेकिन उतना ही दर्शनीय स्ट्रोक, बहुत तेज बल्ला चलाते केदार। और अब देखिए कि स्लॉक ओवर का खेल क्या शुरू हुआ, स्लॉक ओवर के स्ट्रोक भी शुरू हो गए। Big one, short arm pull and massive hit. There is a lot of opportunity. Here go Bhure, this time try to hook. Unconventional stroke played by batsman Kedar Patil. He tried to hook this ball. Ball is travelling to mid-on. Welcome Alim Sheikh and Rahim Sheikh. Both are the uncle of Altaf Bali in Bali Trophy. Rahim Sheikh is the electronic and print media man. This time nice looking try, fall on the ground to deep mid off with the stroke Ganesh off the mark, and Mit Kumar 43 for the loss of 4 wicket. The golden 6 hit by Danish Khoth against Balaji in B Indian Trophy semi-final. This time Kedar drive, all on the ground to the deep whitish mid wicket. Fielder is trembling, well back up from the fielder, and batsman looking for a third, could be close. Yes, umpire call for the third eye. Interesting to see in replay, and third umpire is Amit Salvi. Bottom of the bat, ball is travelling in gap. Fielder is trembling there. Well back up from Jonty. A nice return, high one. First bounce to bowler Sarfaraz Bhure. And now different angle from Prince Movies. Superb telecast. Lovely telecast. Beautiful, wonderful telecast. Touch and go. Tough decision for Amit Salvi. Beautiful telecast you are watching on television set. Yes, not out. Benefit of doubt in favor of batsman because touch and go. And now Kedar Patil crossed the quarter century. He is on 27. Terrific inning is dropped by Bhure. The score moves up to 46 for the loss of 4 wickets. Shahid Khan, remember, 60, one of the best total, magic total, because Mit Kumar have a strong bowling lineup in their side. Here goes Bhure. Ball this time, oh ho!
This one was a biggie out of the ground, typical Ganesh stroke. What a shot. Clicks him away in front of us like effortless stroke, a typical Ganesh stroke. बिल्कुल बाबे सर, इसी तरीके के स्ट्रोक खेलने में माहिर है वहाँ पर, और उनकी फेवरेट गेंद आपने देखा कि ओवर पिच गेंद दी सरफराज ने, और बहुत ही तेज स्ट्रोक, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक. Look at that. Mighty swung on the onside, high in the air, and lot of opportunity for air hostess. Kiss the ball. Look at that, beautifully timing. He is a dangerous man. Dangerous player he is. Sarfaraz Bhure. Goes to Ganesh, who force in the air, could be caught. Jaunty under it. Yes, he's out. The departure of captain inning around the off stump, tried to force that ball over wide of long on, well taken by Jaunty, right on the boundary, and finally Ganesh on his way. बिल्कुल बाबे सर, बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर से घसीट के खेलना चाहते थे और काफ़ी तेज गेंद आई थी वहाँ पर, और आखिरकार गणेश आउट होकर वापस. New batsman is Sachin Pawar. Altaf Ali with Shahid Papa. Welcome the MIM General Secretary Akram Khan in Bali Trophy. His score is 52 for the loss of 5 wicket. That marks end of the 5th over. 5 ओवर की समाप्ति 52 रन 5 विकेटों के नुकसान पे. MIM भिवंडी के जनरल सेक्रेटरी अकरम खान हमारे बीच में आए हैं. हम आपका पुरतबाक इस्तेमाल करते हैं बाली ट्रॉफी में. खेल की शुरुआत आखिरी ओवर के लिए इरशाद. अगर 10 से ज़्यादा ऊपर रन बनेंगे तो फिर वकी स्पोर्ट मापोलियो के सामने कठिनाई आ रहेंगी. जुबैर और सागर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. इस मरतबा अजीबो गरीब शॉट खेला था सचिन पवार ने, लेग बाय का इशारा. सचिन पवार भी इस सीजन में फॉर्म में नहीं चल रहे. इस सीजन की हम बात करें तो माजिद बोबड़े, जगदीश नाइक, जयेश पाटिल, पिंटू ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं. मराठा पंजाब के दीपेश माली तो गेंदबाजों पर टूट पड़ रहे हैं. कई नाम है और भी कई खिलाड़ी जो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. मोती अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस मरतबा आसमान में खेला है, लिविंग एज, सॉफ्ट डिसमिसल, बड़ी विकेट जाती हुई केदार पाटिल आउट. नए बैट्समैन अमोल पाटिल अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं. ये देखिए किस तरह से आउट हुए. फ्रंट फुट को उन्होंने अधूरे मन से आगे खींचा था, लिविंग एज लिया था और सॉफ्ट डिसमिसल. फिर से देखते हम. खेलना चाहते थे गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की तरफ और गेंद फॉलो थ्रू में चले गई थी. स्कोर 53 रन, लेकिन इरशाद ने अब तक बांधे रखा है स्लॉग ओवर में. 4 गेंदें बची है. मित कुमार दिनेश चौधरी फैम टीम है और दिनेश चौधरी हमारे दोनों मैजिक बॉक्स के स्पॉन्सर हैं. इरशाद दूर वाले छोर से मुड़ते हुए सचिन पवार को अच्छी गेंद पैरों में रखा था. ऑफ टोस खेला गेंद को आउटफील्ड में 1 रन के लिए. 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. बहुत खूबसूरत गेंद थी. ये देखते हुए कि पवार ज़्यादा शफल कर रहे हैं, पैरों में रखा था, बैकलिफ्ट को नीचा किया था सचिन पवार ने. 55 रन 6 विकेटों के नुकसान पर आज की शब का आखिरी मुकाबला देख रहे हैं. इस मरतबा कलाइयों का उपयोग मोड़ दिया ऑन साइड में. डीप स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाया. 1 रन बना. दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहां पर अमोल पाटिल ने. 1 रन से स्कोर 56 रन 6 विकेटों के नुकसान पे. 56
फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। अच्छा स्ट्रोक था, कलाइयों को मोड़ा था, बैकलीफ को नीचा करना पड़ा था वहाँ पर। अभी भी मापोली चाहेंगे कि अंडर 60 रहे और मित कुमार चाहेंगे कि ओवर 60 रहे। 2 गेंदें बची है इस आखिरी ओवर में। 56 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। राइट आर्म राउंड विकेट आ रहे हैं। अमोल को देखिए, मानो गेंदबाज मिड विकेट से गेंदबाजी कर रहा है। चंदर पॉल की तरह तिरछे खड़े हैं और आते ही उन्होंने हुक कर दिया है। गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। क्या गजब का शॉट खेला है। आंखें देखिए, आई सेट बैट्समैन वो होता है जो गेंदों को बहुत जल्दी पढ़ लेता है। गेंद हाथ से छूटी, बल्ले से टकराई, बाउंड्री पे नजर आई। ये देखिए, गजब का स्ट्रोक। बहुत खूबसूरत कैमरा वर्क देख रहे हैं और यूट्यूब पे कई मैसेजेस इस वक्त प्रिंस मूवीज के लिए भी आ चुके हैं। हजारों की तादाद में बाली ट्रॉफी के लिए, कमेंट्री पैनल के लिए भी इस वक्त कई मैसेजेस आ चुके हैं। इस मरतबा पुल करने की कोशिश, गेंद शॉर्ट लेग पे गई, लेग बाय। तो कुल मिलाकर रन बने 63 रन और 64 रनों की चुनौती इस मुकाबले को जीतने के लिए रखी। जब तक के इनिंग्स ब्रेक है, आइए दोस्तों, शौकत ने जो कैच पकड़ा था उसके लिए हम 500 रुपये का उनको इनाम देते हैं। केदार पाटिल का शॉट बाउंड्री के पीछे उन्होंने पकड़ा था। मोहतरम अलीम शेख के हाथों से, जो अल्ताफ बाली के अंकल है, साथ में रहीम शेख साहब हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, और अल्ताफ बाली के जो बड़े अब्बू है, आपको तो पता है कि वो भिवंडी के बहुत ही मशहूर अनाउंसर सलाउद्दीन शेख। आइए, हमारे बीच में एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम अकरम खान साहब मौजूद हैं। उनकी हम इज़्ज़त अफजाई करने जा रहे हैं अल्ताफ बाली के हाथों से। अकरम खान साहब हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनकी इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं। एमआईएम जनरल सेक्रेटरी ऑफ भिवंडी अकरम खान की इज़्ज़त अफजाई होती हुई उन्हें शॉल और गुलाए मोहब्बत पेश किए जा रहे हैं अल्ताफ बाली के हाथों से, और एक यादगार ट्रॉफी, बाली ट्रॉफी की। तो लौट चलते हैं बाली ट्रॉफी की दुनिया में। आवाज़ बहुत खूबसूरत है, अंदाज बहुत खूबसूरत है, रात बहुत खूबसूरत है, मौसम बहुत खूबसूरत है, दस्तूर भी है। और इनिशियल ओवर के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा पावर प्ले में मेरे साथी कमेंटेटर नबील दिवकर को। जब तक हम आपको बताते चले कि लेट महमूद शेख स्टैंड ये आप देख रहे हैं, शिवसेना के लीडर थे खारीपार के और समाजी कार्यकर्ता थे। ये देखिए मैजिक बॉक्स लेट मोहन सेठ चौधरी, दिनेश चौधरी ने स्पॉन्सर किया है। इसमें अगर गेंद गिरती है तो आपको 5000 रुपये उस, ये देखिए लेट रविश पिले, जो पॉइनियर के बहुत अच्छे 2 डाउन बैट्समैन थे और पुल स्ट्रोक बहुत अच्छा लगाते थे। तमाम मरहूमों की यादों को ताज़ा किया जा रहा है, जो इस दुनिया में नहीं रहे, इस दारुल फ़ानी से कूच कर गए। लेट मोहम्मद महमूद शेख स्टैंड बताया जा रहा है फिर से। ये मसीह बुबेरे जो बाएं हाथ के बैट्समैन थे और बहुत मशहूर विकेट कीपर थे, मसीह बुबेरे, उस स्टैंड को दिखाया जा रहा है। ये देखिए लेट मसीह बुबेरे स्टैंड फिर से आपके टीवी मॉनिटर पे आप देख सकते हैं। ये तमाम बिल्कुल अल्ताफ बाली के जो भी भाई हैं
और अशीर की लड़की भी वहाँ नज़र आ रही है। फिर से देखते हैं हम लेट रविश पिले स्टैंड, हमारे भाई, और लेट अकील फक्की स्टैंड भी है। ये मैजिक बॉक्स सामने जो बनाया गया है, लेट मोहन सेठ चौधरी मैजिक बॉक्स। दो जादू, बैट्समैन चाहे तो दोनों हाथ में लड्डू लेकर उतर सकता है। ये शेख परिवार के चश्मो चरागों को दिखाया जा रहा है। आने वाले दिनों के देखना है कि वो क्रिकेटर्स बनते हैं या अल्ताफ वाली की तरह बड़ा नाम कमाते हैं। ये लेट अकील फक्की स्टैंड, बहुत अच्छे स्पिन गेंदबाज थे अकील फक्की, बाएं हाथ के चाइनामैन और आर्मर गेंदों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि चीना बहुत तेज़ गेंदबाज थे और अकील फक्की, लेकिन ये दो गेंदबाज को अगर तालुका में किसी ने बहुत आसानी से खेला था, सबको परेशान किया था, तो वो थे बीसीसी के फॉर्मर कैप्टन, एक्स कैप्टन उजैर नाचन, नो डाउट एट ऑल। हसीब मुल्ला ने भी अकील फक्की के सामने अच्छा परफॉर्म किया था। ये हमारा प्लेस पवेलियन, गुलाम रसूल उर्फ चीना, सोर्ड ऑफ पायनियर जुल्फ़िकार के वालिद मोहतरम, जिस वक्त जुल्फ़िकार नहीं बल्कि कलमकार बन के हमारी ऑफिशियल स्कोरिंग कर रहे हैं। ओपनर्स भेजना है वकी स्पोर्ट मापोली, और दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे जाते हुए, और देखना है कि बाजिल पटेल को अपना 100% देना होगा अगर मैच को जीतना है। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है और ये रात बहुत खूबसूरत है कि कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है। प्यास बुझती नहीं, बरसात गुजर जाती है। उनकी यादों से कबों इस तरह आया ना करे, नींद आती नहीं और रात गुजर जाती है। आइए इस रात की कहानी सुनते हैं हम नबील दिवकर की जुबानी। ये देखिए बबलू टाइगर भी चाय का मजा ले रहे हैं। बिल्कुल मजाक हंसी का मूड भी रहता है क्रिकेट में, बगैर उसके अधूरा है। थैंक यू। भावे सर स्ट्राइक पर है, आसिफ नॉन स्ट्राइक पर है, वैभव और पहला और लेकर आ रहे महेश चौहान। पहली गेंद लो फुलटास गेंद ड्राइव किया गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर, अजीबो गरीब अंदाज से गेंद को फील्ड करने की कोशिश, 1 रन पूरा किया। बिल्कुल अमोल पाटिल थे वहाँ पे, ड्राइव किया था बहुत ही खूबसूरती के साथ फुल पे लेकर। यहाँ से इस मैच का जो नतीजा रहेगा वो मैंडेटरी पावर प्ले पहले साबित करेगा। इस बीच ये गेंद स्वंग किया है, गेंद को मिड विकेट की ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बिल्कुल उस पर्दे के पास आप कैच पकड़ते हैं तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, ब्लू पर्दे के पीछे कैच पकड़ते हैं तो ब्लू पर्दे के पीछे। बिल्कुल, क्योंकि वहां से जो दर्शक है कैच के चक्कर में खिलाड़ियों को काफी डिस्टर्ब होता है। बाबे सर ये देखिए क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला था, विद द टाइट स्वंग कर दिया ऑन साइड में, कैलकुलेटेड 6। बहुत बढ़िया स्ट्रोक। इस छक्के से अपना खाता खोला है वैभव ने, 7 रनों पर पहुंचा स्कोर वकी स्पोर्ट्स महापोली का।
इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। क्या बल्लेबाजी भावे सर, अटैकिंग क्रिकेट के मूड से आए आज वैभव। ऐसे लग रहा है कि वकी स्पोर्ट मापोली ने ठान लिए कि ये आर पार है। वो टीम जो कैफी आजमी का फाइनल खेली थी, ये देखिए क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, फिनिश किया था ऑफोली पे लेके गैप में और कोई मौका नहीं था केदार पाटिल के लिए। 4 रन। आउटफील्ड बहुत तेज बनी है, इसका सारा क्रेडिट जाता है पायनियर स्पोर्ट्स को। 11 रनों पर पहुंचा स्कोर इस वक्त वकी स्पोर्ट्स महापोली का। ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि मापोली ने बी इंडियन ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर कर दिया था, एनआर बोरपाड़ा को अपना पहला मुकाबला हरा दिया था। वैभव सामना करेंगे महेश चौहान का। महेश चौहान वीआईपी एंड से इस बार अच्छी गेंद, शरीर से दूर ड्राइव लगाना चाहते थे, स्टंपिंग की अपील और तीसरे अंपायर की मदद मांगी है स्क्वायर लेग अंपायर ने। जबरदस्त वहां पे विकेट कीपिंग का नज़र हमने देखा। सचिन पवार का पलक झपकते ही उन्होंने बेल्स ऑफ कर दिए। देखना है तीसरे अंपायर की मदद ली गई और हमारे तीसरे अंपायर है इस वक्त अमित साल्वी। क्रॉस एंगल से इस रिप्ले की मांग की अंपायर ने, दूसरे एंगल से जो स्क्वायर एंगल रहता है वहां से देखना चाहेंगे अंपायर कि क्या पांव यस अब दिखाया जा रहा है। जो एंगल दिखाया जा रहा था उसी से दिखाने की मांग, देखना है क्या कुछ हुआ है। बहुत मुश्किल निर्णय फिर से अंपायर अमित साल्वी के लिए है। थोड़ा अल्ट्रा स्लो मोशन में देखने की मांग की है और हारी बत्ती जलती हुई, नॉट आउट। डॉट गेंद थी, स्कोर 11 रनों पर रुका हुआ। इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गेंद सीधा दर्शकों पे, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। मैं चौहान तो परेशान है कि क्या शॉट खेल रहे हैं वैभव, क्या क्लास है इस बैट्समैन का। देखना चाहेंगे जो पिछला शॉट वहां पे उन्होंने खेला है। ये देखिए मापोली के सपोर्टर्स वहां पर दिखाए जा रहे हैं और आमान भाभे भी वहां पर है। हालांकि आमान भाभे ने सुबह दोपहर में यहाँ पे कीर्तिमान बनाया था जब हरीश ठाकरे ने उनको 6 गेंदों में 6 चौके, कलाइयों में इस शॉट को खेला था विवेन रिचर्ड की तरह। फिर एक बार इनफील्ड के ऊपर से खेला, इस बार गेंद फील्डरों के हाथ में गई, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं वैभव के लिए। 18 रनों पर पहुंचा स्कोर। बहुत बढ़िया शुरुआत कहनी होंगी इस वक्त वकी स्पोर्ट्स महापोली की, 1 ओवर की समाप्ति के बाद। टीट फॉर टैट जैसे को तैसा जवाब दिया और 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 18 रन बिना किसी विकेट के। इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी हम देख रहे हैं। मीत कुमार का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन था और इस वक्त वकी स्पोर्ट्स महापोली का स्कोर 1 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन।
मिडल कॉन्फ्रेंस अब वहाँ हो रही है, क्योंकि देखना है कि दूसरा पावर प्ले जो मैंडेटरी पावर प्ले है वो बहुत दोनों टीमों के लिए अहम है, और गेंदबाजी के लिए देखना है किसको लगाया जा रहा है। सागर को बुलाया है, मरता क्या ना करता फ्रंट लाइन गेंदबाज को बुलाया गया है, क्योंकि सागर ने कैफी आजमी ट्रॉफी में बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की थी और डिलीवरी ऑफ द ईयर में उन्होंने आउट किया था मुनाफ को। सागर गेंदबाजी करेंगे हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से। सामना करेंगे इनफॉर्म बल्लेबाज वैभव, जो इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। सत्रह रन बनाकर खेल रहे वैभव, 2 छक्के 1 चौका लगा चुके। जाहिद दिवकर ने भी ऑल द बेस्ट कहा है मापोली के लिए, और ऑल इज वेल चलता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद। इस बीच ये गेंद लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 19 पर पहुंचा स्कोर। सागर, इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन बढ़िया फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग पर। और देखना है कौन से बल्लेबाज आउट हुए। यही तरीका था जहां पे विकेट गिर सकता था। रन रीति सही नहीं थी, रनिंग बिटवीन द विकेट बिल्कुल अच्छी नहीं। यस नो और वेट का मिश्रण नहीं था, और क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है, ये देखिए किस तरह से खेला था, वहाँ पे शॉर्ट आर्म पुल किया था, गेंद डीप स्क्वायर लेग पे चली गई थी। कमिटमेंट दोनों खिलाड़ियों के बीच में नहीं था। सोमनाथ का अच्छा थ्रो पहुंचा था और बहुत दूर रह गए थे वहाँ पर। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि बिहाइंड द विकेट जब गेंद जाए तो नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन को कॉल करना चाहिए, और इन फ्रंट ऑफ द विकेट गेंद जाए तो फिर स्ट्राइक के बैट्समैन को कॉल करना चाहिए। जो बैट्समैन आउट होके गए उनको वापस जाना है, देखना है अंपायर क्या निर्णय देते हैं। थर्ड अंपायर की मांग की है वहां पर। आउट तो है, लेकिन ग्राउंड के अंपायर ने वो देखना चाहते कि क्रॉस हुए थे या नहीं। प्रिंस मूवीज, अगर आपके कैमरे में वो क्षण हो जो दोनों बैट्समैन जब एक जगह पे थे तो आपको दिखाना है। गेंद को खेला था, बहुत बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो पहुंचा था डीप से। यस, फिर से उसी रिप्ले को एक बार देखना चाह रहे हैं। उसी रिप्ले को देखने की मांग की है जो अभी बताया गया था।
आसिफ को आउट दिया अंपायर ने। हमारा जो अंपायर बॉक्स है वहां पे कोई भी नहीं बैठेगा, सिर्फ अंपायर्स, सिर्फ अंपायर्स। तो पहला झटका आसिफ के रूप में इस वक्त वकी स्पोर्ट्स महापोली को। अंपायर अमित सालवी ने एक्सप्लेन किया कि अंतर्राष्ट्रीय रूल के मुताबिक जब बिल्कुल बेल्स ऑफ हुई थी तो फेसिंग देखा जाता है कि बैट्समैन कहाँ है, क्या वापस हो रहा है या रन लेने की कोशिश कर रहा है। नए बैट्समैन अरबाज आए। इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 24 पर पहुंचा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं वकी स्पोर्ट मापोली की। 24 रन हो चुके हैं और इस वक्त जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त वैभव। दूसरी ओवर का खेल जारी और स्कोर 24 रन। इस बीच अगेन लेग बिफोर की अपील और अंपायर का इशारा, आउट। विकेटों के बीच धर लिए गए और बड़ा झटका हम कह सकते हैं वकी स्पोर्ट्स को वैभव के रूप में। सागर को इसीलिए लगाया था कि सागर को पता था कैप्टन गणेश को कि वैभव अगर वहाँ टिक गए तो कठिनाइयों में डाल सकते हैं। ये देखिए बढ़िया निर्णय अंपायर का, क्योंकि गेंद लगभग मिडल और लेग की तरफ आ रही थी और इस तरह हलचल के पाँव में इस तरह के निर्णय बहुत मुश्किल रहते हैं। बाईस रन बनाने के बाद बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करने के बाद आउट हो गए वैभव। नए बैट्समैन बाजिल पटेल। द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज टेम्पररी, दिस इज द परफेक्ट टाइम बाजिल पटेल प्रूव हिमसेल्फ is the key batsman of Waki Sport Mapoli, because the situation is according the situation Mapoli needing here some partnership and Mit Kumar needing another breakthrough. सागर। इस बीच अगेन बॉलर बैक ड्राइव, बढ़िया कोशिश सागर की। बहुत ही तेज कदमों से 1 रन पूरा किया है बाजिल पटेल ने। क्या क्रिकेट हो रहा है। उट्टी भी गेंद थी, बैकफुट पे गए थे, फोर्स किया था बॉलर के सिर के ऊपर से, लेकिन मिड ऑन के खिलाड़ी बहुत क्विक थे, लेकिन उससे तेज कदमों से भागते हुए ये देखिए फोर्स खेला था और ये देखिए एक ही एक्शन में गेंद को पकड़ा था। अगर गेंद स्टंप से टकराती तो फिर बाजिल को जाना होता। स्कोर में 1 रन से और इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 25 रनों पर पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर वकी स्पोर्ट्स का। इस बीच अगेन फिर एक बार अपील और अंपायर का इशारा आसमान की ओर, आउट। दूसरी सफलता सागर को इस ओवर में। बिल्कुल, क्या गेंदबाजी सागर ने की थी। जहां पर उन्होंने कैफी आजमी की गेंदबाजी को समाप्त किया था वहीं से शुरुआत की। और गणेश की कप्तानी को भी देखिए, उन्होंने आखिरकार पहले ओवर में जब रन ज़्यादा बने, ये देखिए बिल्कुल प्लम एलबीडब्ल्यू टो से टकराई थी, मिडल स्टंप पे पाए गए थे बैट्समैन। ये अच्छी रणनीति कप्तान गणेश की कि उन्होंने सागर को बुलाया और बड़ी विकेट गिरती हुई नए बैट्समैन अब बल्लेबाजी को आए हैं। इरशाद, अभी भी बैटिंग लाइनअप बाकी है, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं।
ये पहला विकेट और ये देखिए दूसरा परफेक्ट स्विंगिंग यॉर्कर। मैं तो कितने दिन से कह रहा हूँ कि इरफान पठान जब से कैफी आजमी में यहाँ आए हैं, बाएं हाथ के गेंदबाजों की मानो निकल पड़ी। नए बैट्समैन इस बीच अगेन इरशाद आए बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे सागर का। सागर आज ही समझ से डिस्टेंस एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 25 रनों पर रुका हुआ, 3 विकेटों के नुकसान पर। नेस्टी गेंद थी, बिल्कुल नाक के पास से गई और अब इस बीच ये गेंद तेज तरार गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से और इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 26 पर पहुंचा। वैभव इस बीच ये गेंद कलाइयों के सहारे मोड़ने की कोशिश, 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रनों पर पहुंचा। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद वकी स्पोर्ट्स महापोली का 3 विकेटों के नुकसान पर 64 रनों के लक्ष्य का पीछा करी है वकी स्पोर्ट्स महापोली। क्या होगा अगली 2 ओवरों में, आइए सुनते आगे ही कहानी शाहिद खान की जुबानी। बिल्कुल सागर ने कितने रन खर्च किए जुल्फिकार पिछले ओवर में? 9 रन दिए और बैक टू बैक उन्होंने 2 झटके लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया नबील दीकर। 2 ओवर की समाप्ति, इस वक्त 27 रन और कहा जा सकता है बाबेसर के पावर प्ले में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। वैभव ने शुरुआत बहुत बढ़िया दी है, लेकिन अब देखना है क्या मिडल ओवर में एक अच्छी पार्टनरशिप की जहां ज़रूरत है, दोनों ही बैट्समैन एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं, बाजिल और इरशाद। अब जीत के लिए बाबेसर यहां पर 37 रन चाहिए। बिल्कुल अभी भी मैच बंद लिफाफे की तरह आगे बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि इस वक्त बंद कोरियर की तरह मैच कहाँ जाएगा पता नहीं लग सकते। ये देखिए डिलीवरी ऑफ द ईयर जो कैफी आजमी में सागर ने की थी, जिस पर बी इंडियन के मुनाफ आउट हुए थे, डिलीवरी ऑफ द ईयर को दिखाया जा रहा है। इस साल की सबसे बेहतरीन गेंद जो सागर अभी अभी गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने कैफी आजमी के फाइनल मुकाबले में जिस तरह मुनाफ को आउट किया वो गेंद को दिखाया जा रहा है। बहुत खूबसूरत लिफ्टिंग डिलीवरी थी और बल्ला हटा भी नहीं पाए थे मुनाफ। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं जुबैर, उनका सामना करे इरशाद। अब देखना है 37 रन की जरूरत है, 24 गेंदों में बैटिंग पावर प्ले भावेसर जिस पे बहुत निर्भर रहेगा वकी स्पोर्ट्स महापोली का। जुबैर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से तेज तरार गेंद, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक खेला है, गेंद कवर बाउंड्री की ओर आ रही है, फील्डर मौजूद है वहां पर। 1 रन बना और बाजिल 1 ही रन से सहमत। इस वक्त स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। यहाँ पर देखना है अब भावेसर, दोनों ही अच्छे बैट्समैन अभी भी क्रीज पर है वकी स्पोर्ट्स महापोली के। बिल्कुल अगर बाजिल पटेल चल गए तो फिर बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में डाल देंगे। दूर से खेला था, हालांकि मिडल ऑफ द बैट खेला था, फ्लैशी एक्स्ट्रा कवर ड्राइव। जुबैर उनका सामना कर रहे हैं बाजिल। जुबैर जिन्होंने कैफी आजमी ट्रॉफी में भावेसर दुर्गा बी स्पोर्ट्स के सामने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, विश्वजीत को लगातार बीट कराया था उन्होंने। लोअर फुल टॉस गेंद कारपेट के सहारे, बहुत ही तेज स्ट्रोक, फील्डर अल्ताफ मौजूद है, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर इस वक्त 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर वकी स्पोर्ट्स महापोली। बहुत बढ़िया बाबेसर इस वक्त लक्ष्य का पीछा करिए, बिल्कुल जो रन रेट चाहिए था उसी रन रेट से इस वक्त चल रही है। यॉर्कर लेन की गेंद थी। जुबैर इस बीच गेंद लंबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, वहां पर इरशाद पूरी तरह चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर सचिन के दस्तानों में डॉट के रूप में। बिल्कुल जब विकेट कीपर चिपका हुआ रहता है तो इस तरह की कठिनाइयां रहती हैं। आपने देखा कि सीधा रखा था इस मरतबा जुबैर ने गेंद को। बहुत कद छोटा है लेकिन गेंदबाजी उनकी
कद के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बुलंद है। जुबैर फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से केवल दिशा दी वहां पर, गेंद कारपेट के सहारे आती हुई अमोल ने गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस वक्त स्कोर इस वक्त बढ़ता हुआ 30 रन। अभी भी मैच जीतने के लिए 34 रन चाहिए भावेश सर, और गेंदें अगर हम देखें तो बची है 20 गेंदें बची है। ये आप मैजिक बॉक्स में उन्हीं के स्पॉन्सर और करता धरता दिनेश चौधरी को देख रहे हैं। जुबैर इस बीच ये गेंद फुलर लेन की गेंद थी, वहां पर छोड़ दिया था बाजिल ने, कोई इस वक्त खेलने की कोशिश नहीं, और गेंद इस वक्त डॉट के रूप में। यही खासियत है जुबैर की कि वो अधिकांश गेंदें ऑफ स्टंप और उसके करीब रखते हैं। जुबैर फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बीच बहुत बढ़िया गेंद, लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश लेकिन इस वक्त ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। कोशिश अच्छी की थी वहां पे सचिन पवार ने, स्टंप करने का तो बहाना था, वाइड को बचाना था। यस, ऑन द लाइन एंड लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। बिल्कुल भावेश सर, इस वक्त 1 रन जरूर बढ़ेगा स्कोर में। स्कोर इस वक्त 31 रन, अभी भी 33 रन मैच को जीतने के लिए चाहिए, और गेंदें बची है 19। जुबैर ओवर पिच गेंद, स्लॉग स्वीप इस वक्त हवा में, फील्डर नीचे आने की तैयारी में, और आसान सा कैच छूटता हुआ इस वक्त, और 2 रन इस वक्त पूरे होते हुए। सागर के हाथों से कैच छूटा। केदार पाटिल थे वहां पर, और ये महंगा भी पड़ सकता है। स्लॉक करना चाहता ऑफ स्टंप के बाहर से बैट्समैन बाजिल पटेल ने। ये देखिए दूर से खेले थे, स्टीव वॉ की तरह घुटनों के बल बैट के शॉट को खेला था, और केदार पाटिल से वो कैच छूटा। अब 3 ओवर की समाप्ति। स्कोर अगर हम देखें तो भावेश सर इस ओवर में बहुत अच्छी गेंद। समय में सहयोग करना है प्लीज। मित कुमार, मोहल्ला कमेटी मीटिंग ना ले। 3 ओवर की समाप्ति, इस वक्त स्कोर है 33 रन, अब 31 रन चाहिए। मित कुमार को पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है समय के मामले में। ये देखिए दिनेश चौधरी हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर भी है, करसन फ्लोरे भी नजर आ रहे हैं वहां पर। अब भावेश सर 18 गेंदें और जीत के लिए 31 रन चाहिए। इस टेलीकास्ट की बहुत सराहना हुई है। ये प्रिंस मूवीज के प्रोपराइटर रविंद्र गुलवी, ये देखिए किस तरह से अगले पांव को बहुत लंबा खींचा था, स्लॉक किया था, दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है, लेकिन केदार पाटिल उस कैच को नहीं पकड़ पाए। अभी भी अगर हम देखें भावेश सर तो इस वक्त जो करंट रन रेट चाहिए था उसके थोड़ा सा ऊपर चलती हुई, लेकिन देखना है अब 18 गेंदें और जीत के लिए रन चाहिए 31, और अभी भी दोनों अच्छे बैट्समैन इस वक्त क्रीज पर। अभी भी दिनेश चौधरी के चेहरे पे इत्मीनान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुकाबला कट टू कट चल रहा है। आधे ओवर हो चुके हैं, आधे रन बने, 3 विकेटें गिरी है, और लगभग 31 रन चाहिए। 31 रन चाहिए बचे हुए 3 ओवर में। जो आस्किंग रन रेट है वो 10.33 का। ये जो चौथा ओवर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको अब सागर को बुलाया गया है। बैटिंग पावर प्ले हालांकि बचा हुआ है। बिल्कुल भावेश सर, बैटिंग पावर प्ले भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। जब बल्लेबाजी करी है वकील स्पोर्ट्स महापोली, सागर सामना करें इरशाद। इस बीच गेंद बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक खेला है, गेंद जारी इस वक्त खवा बाउंड्री की, और फील्डर ने अब जाके गेंद को उठाया, लेकिन एक ही रन, बढ़िया फील्डिंग वहां पर महेश की। बिल्कुल बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला था वहाँ पर ऑन दी अप, लेकिन उससे बढ़कर फील्डिंग देखी हमने महेश चौहान की। एक एक रन बहुत कीमती है इस मैच के लिए। बिल्कुल भावेश सर, अब 17 गेंदें और जीत के लिए 30 रन चाहिए। एक एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही टीमों के लिए यहाँ पर। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, बहुत ही तेज स्ट्रोक, गैप में गेंद, देखना है अंपायर के इशारे का इंतजार, और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक बाजिल पटेल का, गजब का शॉट खेला है उन्होंने। देखना चाहेंगे हम रिप्ले में, क्या शॉट खेला है बाजिल पटेल ने।
सागर के खिलाफ इस तरह के शॉट आसान नहीं होते हैं। ये देखिए, फ्रंट लेग को अलग किया, पूरी ताकत से बल्ले को स्विंग किया, गेंद बल्ले से लगने के बाद सीधी जाती भी वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, कैलकुलेटेड 6। बिल्कुल, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक बाबे सर, और मैं कह सकता हूं कि इस छक्के ने मैच में जरूर थोड़ा सा मजबूत किया है वकी स्पोर्ट्स महापोली को, क्योंकि स्कोर उछलता हुआ पहुंचा इस छक्के की मदद से। 40 रन, अभी भी 24 रन चाहिए बाबे सर। बिल्कुल टफ, एकदम क्लोज फोटो फिनिश मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, और बाजिल पटेल अब आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करते हुए। सागर, लोअर फुल टॉस गेंद, फिर से स्विंग किया बाजिल ने, गेंद जाएगी, देखना है मैदान के बाहर। 6 रन, व्हाट अ स्ट्रोक बाबे सर। लोअर फुल टॉस की गेंद थी और बाजिल पटेल का बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, और कहा जा सकता है कि मैच में पूरी तरह इस वक्त वकी स्पोर्ट्स महापोली। क्या शॉट खेला है वहां पर, ताकतवर स्ट्रोक, लोअर फुल टॉस गेंद, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाती भी 6 रनों के लिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि मापोली कि क्रिकेट को अगर हम आइडेंटिटी करें तो बाजिल पटेल सबसे अच्छे बैट्समैन कहे जाते हैं। द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट नाउ। बाजिल प्लेड अ terrific knock so far. अब गणेश कैप्टन काफी वरीड नजर आ रहे हैं। छक्कों के हैट्रिक पर है, देखना है, लेकिन बढ़िया गेंद इस वक्त कारपेट के सहारे खेला, वहां पर गेंद जा रही है इस वक्त कवर की दिशा में, बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर इस वक्त बहुत बढ़िया, 47 रन। अब हम कह सकते हैं कि मित कुमार के लिए कठिनाइयां होती हुई बैटिंग पावर प्ले बचा है, और बाजिल पटेल ने जो आक्रमण खोला है, ये देखिए फुलर लेंथ की गेंद थी, ड्राइव किया था गेंद को एक्स्ट्रा कवर में। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त। अब देखना है, स्ट्राइक पर है इरशाद, शॉट गेंद बैटफुट पे चले गए, बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद जाएगी पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, और सागर अब अपने टीम के लिए बहुत महंगे और वकी स्पोर्ट्स महापोली के लिए बहुत अच्छे साबित होते हुए। बिल्कुल, जिस रेस के घोड़े पर इस वक्त पैसा लगाया था वहीं रेस का घोड़ा फ्लॉप होता हुआ, जगह दी थी, बैकफुट पे चले गए थे, फ्लैशी स्क्वायर कट किया था इनफील्ड के ऊपर से, पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। अब हम कह सकते हैं कि कठिनाइयां मित कुमार के लिए, वो टीम जिसने कैफी आजमी का फाइनल मुकाबला खेला, आखिरी मुकाबला, अपने पहले ही मुकाबले में कठिनाइयों में, हालांकि अभी भी मैच बचा है और भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना कहता हूं कि कभी मित कुमार अगर इस मैच को हार गई तो सबसे बड़ा उलटफेर हम अल्ताफ बाली कप में देखने जा रहे हैं। बिल्कुल भावेश सर, अब रन इस वक्त सागर, इस बीच अगेन सीधे बल्ले से खेला है, देखता है वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन नहीं पहुंच पाए और 1 रन पूरा। बहुत महंगा ओवर इस वक्त सागर का चलता हुआ बाबे सर, क्योंकि इस वक्त ओवर समाप्त हो रहे 4, और इस वक्त वकी स्पोर्ट्स महापोली का स्कोर है 52 रन। अब 12 गेंदें और जीत के लिए 12 रन, तो कहा जा सकता है कि वकी स्पोर्ट्स महापोली का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, और ये एक ऐसी टीम है बाबे सर जिन्होंने कई बार बड़े बड़े टीमों को अपसेट किया है, लेकिन देखना है क्या जिस तरीके से क्रिकेट खेली है उसी तरीके से क्रिकेट खेलती है, क्या जीत वकी स्पोर्ट्स महापोली आसानी से करती है, या फिर मित कुमार के गेंदबाज पलटकर वार करते हैं। आगे का हाल सुनाने के लिए आ रहे मेरे साथी कमेंटेटर बाबे सर। बिल्कुल, मैंने कहा था कि केदार पाटिल ने जो कैच छोड़ा था बाजिल पटेल का, वो अब कितना महंगा पड़ता हुआ। 12 गेंदों में 12 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए वकी स्पोर्ट महापोली को, और टॉप गियर में अब बाली ट्रॉफी जा चुकी। और पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए शाहिद खान कि 12 गेंदों में 11 रन कैफी आजमी में
जयदुर्गा भी स्पोर्ट्स को अमित कुमार ने नहीं बनाने दिए थे। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट कॉल ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, लेकिन पड़ला बहुत भारी हो चुका है इस वक्त वकी स्पोर्ट मापोली का, क्योंकि बाजिल पटेल एक ऐसे बैट्समैन है जो इस ग्राउंड पे कई ऐतिहासिक बारियां खेली है। जुल्फिकार, आपको भी याद होगा, पायनियर के लिए एक बार सरदर्द बने थे और वो जब आउट हुए थे तो ये पायनियर उस मुकाबले को जीती थी सोहेल नवाब बेग में। और मेयर कप में भी एक बार बाजिल पटेल पायनियर के लिए सरदर्द बन गए थे। यहाँ पर कपिल पाटिल ट्रॉफी में भी ग्रामीण क्रिकेट से खेलते हुए बाजिल पटेल ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। अमोल पाटिल के चेहरे पे अब चिंता साफ नजर आ रही है। जुबैर को गेंदबाजी दी गई, जिन्होंने कैफी आजमी में हारा हुआ मैच जीता दिया था अमित कुमार को। सामना करेंगे इरशाद। 12 गेंदे 12 रन। सर्कल में खिलाड़ी, क्योंकि गेंद को ड्राइव किया, बहुत बढ़िया कोशिश, रन पूरा। 11 गेंदे 11 रन। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला आप देख रहे हैं, कट टू कट मैच यू आर वॉचिंग। ये भिवंडी क्रिकेट की जीत है, ये अल्ताफ बाली की जीत है, ये बाली कप की जीत है, ये पायनियर की जीत है। दोनों टीमें जी जान लड़ाकर क्रिकेट के अंदर तक पहुंच चुकी है। अब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए बाजिल पटेल को इस मर्तबा गेंद को फ्लिक कर दिया हवा में, राहुल गेंद के नीचे। यस, बाजिल पटेल फिर से फिनिशर नहीं बन सके और आउट होके आ रहे। मोड़ आता हुआ अब मैच में। ये देखिए, जुबैर की गेंद हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पैरों में निशाना था और बाजिल पटेल आउट। 10 गेंदे 11 रन। नए बैट्समैन सरफराज भूरे बल्लेबाजी को आए हैं। ये जो स्थिति रहती है नबील, इसमें जिनकी मुट्ठियां बंद है बंद ही रह जाती है, जिनके मुंह खुले खुले ही रह जाते हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर इस स्थिति में आ और ऊ की आवाज़ें बहुत आती है। ये देखिए, बढ़िया कैच वहाँ पे राहुल ने पकड़ा था। 10 गेंदे। शाहिद खान क्या कहेंगे, बाजिल पटेल के बाद क्या आपको लगता है कि मैच मोड़ ले रहा है? बिल्कुल बाबे सर, अब देखना है कि बाजिल पटेल जो, क्योंकि फ्लड लाइट की रोशनी बाबे सर जो साइड बैट्समैन होता है उसे ही फिनिशर बनना चाहिए, लेकिन मैच में अगर मगर को जगह नहीं, बड़ा विकेट ज़रूर मिला है। देखना है बड़ा विकेट मिलने के बाद क्या कमबैक करती है अमित कुमार, या फिर इरशाद जो एक सिरा संभाले हुए वो अच्छी बल्लेबाजी करती है। फिनिशर बहुत कम है तालुका क्रिकेट में, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी का तो कोई सान ही नहीं। बेस्ट फिनिशर ऑफ द वर्ल्ड। जुबैर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जा रहे हैं। सामना कर रहे हैं इरशाद। नॉन स्ट्राइक पर सरफराज भूरे हैं। बहुत ही रोमांचक मुकाबला आप देख रहे हैं। इस मर्तबा अपील और आउट एलबीडब्ल्यू। बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। और अब हम कहेंगे कि छोटे कद के जुबैर ने जहां जयदुर्गा बी को कठिनाइयों में रखा था, ये देखिए प्लम एलबीडब्ल्यू है, मिडल स्टंप पर गेंद है। कोई अंपायर के मन में दुविधा होंगी ही नहीं ऐसे बैट्समैन को आउट देने में। बिल्कुल मिडल स्टंप पर पाए गए हैं। ये देखिए, मिडल स्टंप को गेंद हिट कर रही थी और आउट हो गए वहां पे इरशाद। अब कहा जा सकता है बाबे सर कि जो दोनों साइड बैट्समैन थे जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने मैच के करीब तो लाया लेकिन मैच नहीं जीता पाए। अब देखना है क्या स्लॉक ओवर का जो खेल चल रहा है और स्लॉक ओवर के जो बैट्समैन बल्लेबाजी के लिए आए, अब यहाँ पर दोनों के बीच में बहुत ही संघर्ष रहेगा। कौन हावी होता है, क्या गेंदबाज या फिर बल्लेबाज? बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए थे वहां पे इरशाद। प्लम एलबीडब्ल्यू। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए बबलू। ये क्रिकेट है अमित कुमार का। यहाँ पर हैट्रिक पर हैं और हैट्रिक लेते हैं तो 5,000 रुपये का इनाम इस वक्त गेंदबाज जुबैर के खाते में चला जाएगा। बिल्कुल भावे सर, लेकिन 5,000
रुपये से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी ये गेंद है, क्योंकि अगर हम देखें इस वक्त तो जुबैर जो गेंदबाजी करे बहुत बढ़िया, इसी तरह उन्होंने मैच में वापस लाया था दुर्गा बी के सामने, और अब हम कह सकते हैं कि दोनों ही महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच में ज़रूर वापस लाया जुबैर ने। बिल्कुल 5,000 का इनाम है, लेकिन हैट्रिक लेते हैं तो दिनेश चौधरी तो उसमें एक और 0 लगा देंगे। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए जुबैर, सामना करेंगे बैट्समैन बबलू। गेंदे बची है इस वक्त 9 और रन चाहिए 11। टफ इनकाउंटर आप देख रहे हैं, कट टू कट मुकाबला। इस मरतबा बैकलिफ को नीचा किया, पुश किया, रन आउट का मौका था वहां पर लेकिन गवा दिया शॉर्ट कवर के फील्डर ने। स्कोर 54 पे पहुंचा है। ये देखिए किस तरह से उस गेंद को पुश किया था बबलू ने, बैकलिफ को नीचा किया था, परफेक्ट यॉर्कर थी। हालांकि अपनी क्रीज के बाहर निकले थे लेकिन यहां पर पहुंच गए खिलाड़ी। गेंदे बची है 8 और रन चाहिए 10। बहुत जबरदस्त मुकाबला आप देख रहे हैं। सचिन पवार कुछ कहते हैं, ये जो स्थिति रहती है शाहिद खान, जब आपको रन टू बॉल इक्वेशन होती है तो सर पे बर्फ रख के बल्लेबाजी करना होती है। आपने देखा यही मीत कुमार के 3 बैट्समैन आखिरी ओवर में सिक्सर लगाने के चक्कर में कैफी आजमी ट्रॉफी को हार गए। बिल्कुल बाबे सर, 6 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में और नहीं बना पाई थी मीत कुमार, 1 रन से मुकाबला हार गई थी। कांटे की टक्कर आप देख रहे हैं, नेक टू नेट फाइट। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, कोई रन नहीं। जुबैर को देखिए बिल्कुल जगह नहीं देते हैं, बैकफुट पे चले गए थे, फोर्स किया था सरफराज बूढ़े ने। 7 गेंदे 10 रन, किसने सोचा था कि 12 गेंदे और 12 रन। लेकिन मीत कुमार ने जब भी इस तरह के मुकाबले जीते हैं तो फिर ऊपर की तरफ देखा है। जुबैर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, इस मरतबा बहुत खूबसूरत शॉट, लेकिन ओहो, दूसरी कोशिश में अमोल पाटिल ने कैच नहीं बल्कि मैच पकड़ लिया। ये देखिए क्या खूबसूरत कैच पकड़ा है वहां पर दूसरी कोशिश में, और ये देखिए सेलिब्रेशन। कहां पर 2 ओवर 12 और कहां 1 ओवर और 10 रन। क्या कहेंगे शाहिद खान, इसीलिए तो क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाए। बिल्कुल बाबे सर, क्रिकेट में अगर सब कुछ सर्टियन रहता, न ये ग्लैमर रहता, न ये चाम रहता, न दिल की धड़कनें बैठती, न दिल की धड़कनें उभरती, न मुट्ठियां लोग भींच लेते, न पंजों पे खड़े रहते। बिल्कुल बाबे सर, मैं तो इतना कहूंगा कि जुबैर ने जो गेंदबाजी की है, जहां बाजिल को उन्होंने आउट किया, उसके बाद इरशाद को पवेलियन का रास्ता दिखाया, उसके बाद सरफराज को, तो ये और बहुत बढ़िया रहा, जिसने पूरी तरह मैच में तो ज़रूर लाया है। लेकिन देखना है, अभी भी 10 रन चाहिए और नए बैट्समैन शमून आए। बिल्कुल, पिछली ओवर में जुबैर ने सिर्फ 2 रन दी और 3 विकेटें ली। नए बैट्समैन शमून है, जबकि सामना कर रहे हैं इस वक्त गेंदबाजी के लिए अरविंद को बुलाया गया है। साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं अरविंद। शमून अब सामना करेंगे। ये मैच अब अरविंद वर्सेस वकी स्पोर्ट मापोली हो गया है, लेकिन मापोली की टीम इस सीज़न में बढ़िया क्रिकेट खेल रही है। इंडियन ट्रॉफी में भी अच्छा क्रिकेट खेला। ये देखिए दिनेश चौधरी मैजिक बॉक्स में अभी तक फुल सेफ, उनके चेहरे पे इस तरह के तासुरात नहीं है कि मैच, और नहीं भी होना चाहिए,
क्योंकि क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। 6 गेंदों में 10 रन चाहिए। शमून सामना कर रहे हैं अरविंद का। विकेटों को हम देखें तो अब तक 6 विकेटें गिर चुकी है। पहली गेंद तेज निकल गई थी वहां पर, लेकिन रन पूरा किया लेग पाई। हालांकि सवाल जरूर पूछा था विकेट कीपर ने और अनुमान था कि गेंद ऊंचाई पे लगी थी, जिस तरह से खेलने की कोशिश की थी शमून ने। ये देखिए ऑफ स्टंप छोड़कर जा रही थी गेंद। बढ़िया निर्णय अंपायर का। 5 गेंदें 9 रन। बबलू सामना करने जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला आप देख रहे हैं वकी स्पोर्ट मापोली और रनर्स ऑफ कैफी आजमी मीत कुमार के बीच में। 5 गेंदों में 9 रन चाहिए। अरविंद मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आ रहे हैं। इस मरतबा कलाइयों का उपयोग टर्न कर दिया ऑन साइड में। डीप स्क्वायर लेग पे राहुल ने गेंद को उठाया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और आउट हो गए, रन आउट। 7वां विकेट गिरता हुआ यहां पर वकी स्पोर्ट मापोली का। कहां एक समय था जब 12 गेंदों में 12 रन चाहिए थे और 6 विकेटें हाथ में थी, और कहां अब एक समय है कि 4 गेंदों में अब जीतने के लिए 9 रन चाहिए और विकेटों को हम देखें तो 3 विकेट वकी स्पोर्ट मापोली के पास। बिल्कुल बाबे सर, कहा जा सकता है इस वक्त के जो इक्वेशन थी उस वक्त बैटिंग पावर प्ले लिया गया और उसके बाद दोनों ही सेट बैट्समैन आउट हुए। उसके बाद स्थिति बहुत नाजुक। 4 गेंदें बची है और जीत के लिए रन चाहिए 8। 4 गेंदों में 8 रन। मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी गेम। क्या मीत कुमार के लिए जुबैर ने गेंदबाजी की, जो सेकंड लास्ट ओवर उन्होंने दबाव में डाला। बैट्समैन कौन है, गेंदबाज कौन है, खिलाड़ी कौन है जो दबाव को झेले। दबाव में जो उभरता है उसी को बाजीगर कहलाते हैं। देखना है अभी भी मैच बराबरी पे चलता हुआ। एक लंबा स्ट्रोक करीब कर सकता है वकी को, तो 1 विकेट मैच के और करीब कर सकता है मीत कुमार को। नेक टू नेट फाइट, कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं अल्ताफ बाली कप में। अरविंद के गेंद इस मरतबा करारा ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के ऊपर गेंद जाती हुई 4 रन। ओहो, मैच ने करवट बदल ली है और फिर से मैच अब बैलेंस हो चुका है, क्योंकि गेंदें बची है 3 और रन चाहिए 4। क्या लग रहा है शाहिद खान, कहीं हम सुपर ओवर तो नहीं देखने जा रहे हैं? बिल्कुल बाबे सर, जिस तरीके का मुकाबला हो रहा है तो दोनों ही टीमों को 50-50% देना चाहिए। पहले वकी स्पोर्ट्स मापोली का बढ़िया परफॉर्मेंस, उसके बाद मीत कुमार का बढ़िया। एक बात तो जरूर कहूंगा, मैच कोई भी जीते, दोनों टीमों ने तो दिल जीत लिया है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया में ये टेलीकास्ट www.sssbwd.com पे जा रहा है। यूट्यूब पे ये टेलीकास्ट लाइव जा रहा है। संतोष नानेकर tenniscricket.in, जहाँ पे हज़ारों मैसेज इस ट्रॉफी से हमें मिले हैं और कई मैसेजेस ट्रॉफी के लिए हैं और कई हज़ारों मैसेजेस कमेंट्री पैनल के लिए भी आ चुके हैं। बिल्कुल, काफ़ी दर्शक इस मुकाबले को भी देख रहे भावे सर। इस तरीके के मुकाबले बहुत कम देखने को मिलते हैं और जब भी होते हैं तो देखते ही बनते हैं। इस तरह के मुकाबले तो दर्शक रोज देखना चाहेंगे। 3 गेंदें शमून सामना कर रहे हैं, शाद सामना कर रहे हैं, शाद टानवाल अरविंद का। इस मरतबा लिविंग एज नहीं था, मिड विकेट बाउंड्री पे फंबल किया है। 2 रन पूरे, 2 गेंदें और 2 रन। अब तो मैं कहूंगा कि कमजोर दिल वालों के लिए मैच नहीं बचा है, कमजोर दिल वालों के लिए मैच नहीं बचा है। तीनों ऑप्शन है, या तो वकी स्पोर्ट मापोली जीत जाएंगी, या तो मीत कुमार जीत जाएंगी, या तो फिर मुकाबला बराबरी पे। बिल्कुल बाबे सर, ये जो मुकाबला हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। दर्शक भी देखिए काफी ज्यादा इस वक्त इस मैच को देखने के लिए। टेलीविजन सेट पे भी कई दर्शक, इंटरनेट के माध्यम से भी कई दर्शक देख रहे हैं और मुकाबला भी क्या हो रहा है, बहुत बढ़िया। कमजोर दिल वालों के लिए अब ये मैच नहीं बचा है।
2 गेंदे 2 रन। मैच समाप्ति के बाद मैदान में कोई नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। वकी स्पोर्ट मापोली के समर्थक आपको भी ध्यान रखना है, ग्राउंड में कोई नहीं आएगा। प्राइज जब हम बांटेंगे जब आप अंदर आ सकते। ये अल्ताफ बाली का शो है और आपको तो पता है, खुद की टीम को पेनल्टी दी थी और राजीव गांधी का वो सेमीफाइनल मुकाबला था जो बराबरी पे छूटा था, पायनियर बनाम जयदुर्गा बी स्पोर्ट। 2 गेंदे और 2 रन। अरविंद मुड़ते हुए इस मर्तबा ड्राइव किया है, 1 रन बना, दूसरे के लिए मुड़ चुके हैं। थ्रो और अंपायर की उंगली आसमान में, रन आउट। 1 गेंद और 1 रन। शाहिद खान, इस रात की कीमत बढ़ चुकी है, इस गेंद की कीमत बढ़ चुकी है। इस गेंद का अब सस्पेंस बहुत बढ़ चुका है, किसकी हार किसकी जीत या मुकाबला बराबरी पे। लेकिन यहां से वकी स्पोर्ट मापोली मैच नहीं हार सकती है, लेकिन मित कुमार सुपर ओवर कर सकती है। बिल्कुल भावे सर, आज बुरे बॉयज ने भले ही निराश किया लेकिन वकी स्पोर्ट्स महापोली ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। बिल्कुल, 1 गेंद 1 रन। और इस गेंद का सस्पेंस इतना बढ़ चुका है कि दीवार पिक्चर के बाद सलीम जावेद अगर अलग नहीं होते तो वो भी इसके स्क्रिप्ट को लिख नहीं पाते। व्हाट अ मैच। अल्ताफ बाली भी हम देख रहे हैं कि कभी यहां खड़े रह रहे हैं तो कभी वहां। 1 गेंद और 1 रन जीतने के लिए वकी स्पोर्ट मापोली को। शाहिद खान, क्या कहीं हम एक बड़ा उलटफेर अपसेट तो नहीं देखने जा रहे हैं, या फिर मित कुमार मैच को बराबर करने जा रही है? बिल्कुल भावे सर, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन शाज जो बल्लेबाजी करे भावे साथ आते के साथ जो उन्होंने स्ट्रोक खेले वो बहुत ही बढ़िया। अभी तक उन्होंने कोई डॉट गेंद नहीं खेली है। पहली गेंद पे उन्होंने चौका लगाया था, दूसरी गेंद को भी सही कलेक्ट किया, तीसरी गेंद पे भी। समय के मामले में दूसरी ऑफिशियल वार्निंग मित कुमार को कमेटी की तरफ से। 1 गेंद बची और 1 गेंद का फील्ड कैसे जमाना है वो चल रहा है। फील्ड को जमाना है मित कुमार। और ये मुकाबला अब वो जो गेंदबाज हैं अरविंद, उनके हाथों में कैद हुआ है और सामना कर रहे हैं इस वक्त शाज ठानवाल। यहाँ से वकी स्पोर्ट मापोली मैच नहीं हार सकती और यहाँ से मित कुमार के पास एक चारा है कि रन बचाए, विकेट ले और सुपर ओवर हो। हमारे साथ जब इरफान पठान थे उनके साथ आपको पता है कामरान खान थे, और आईपीएल का पहला सुपर ओवर कामरान खान के हाथों में दिया था शेन वॉर्न ने। हालांकि आज गेंदबाजों का दिन है। डेब्यू किया था जुएल गार्नर और कॉलिन क्राफ्ट ने 1977 में ब्रिजटॉन बारबाडोस में। आज ग्रैम निशाम ने सेंचुरी लगाई थी डेब्यू 2014 में। आखिरी गेंद अम्ब्रेला फील्ड, बैट्समैन के पड़ोसी बढ़ चुके हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए अरविंद सामना करेंगे शाज ठानवाल। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है, बड़ा अपसेट हम देख रहे हैं और वकी स्पोर्ट मापोली ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन वकी स्पोर्ट मापोली, कॉन्ग्रेचुलेशन द कैप्टन ऑफ मापोली बबलू। हार्ड लक, हार्ड लक, हार्ड लक मित कुमार, हार्ड लक दिनेश चौधरी। वकी स्पोर्ट मापोली को इस वक्त शादाब कोतकर, फरहान पटेल, इरफान भूरे, नौशाद पटेल, जकी नाचन, दानिश पटेल